By 2025, India is in the middle of a massive transformation. We're talking about one of the most ambitious overhauls of its entire labor system in history. This isn't just a tweak here and there, it's a fundamental reinvention, all designed to build a more flexible, secure, and future-ready workforce. So today we're going to break down exactly what this labor revolution means for millions of workers and businesses across the country. So how is all this happening? Well, first, we'll look at the brand new legal foundation being laid. Then we'll see how that's fueling a massive push for new jobs. After that, we'll dive into the digital tools making Social Security easier than ever to access, see how that safety net is getting bigger and stronger, and finally, we'll look at the digital bridge that's connecting people's skills directly to real opportunities. Let's get into it. First up, let's talk about the foundation for all this change, a complete and total rewrite of India's decades-old complicated labor laws. You see, for decades, India's labor system was this tangled web of 29 different, often overlapping laws. It was confusing for everybody. But by 2025, that's all changed. The government has basically taken that entire complex mess and streamlined it into just 4 simplified modern codes that are actually built for the 21st century economy. And these are the 4 new pillars. They cover all the big stuff: wages, how companies and unions interact, Social Security, and of course, workplace safety and health. You could say it's a complete reset of the relationship between employers, their employees, and the government itself. Now, this slide really gets to the heart of a huge philosophical shift. The old system, often called the Inspector Raj, was all about enforcement and, frankly, punishment. The new way changes that. It turns inspectors into inspector-cum-facilitators. Their job is now more about guidance and making it easier to comply. And this isn't just talk, it's backed by real changes, like going from tons of different registrations to just a single one, and moving away from criminal penalties for first-time mistakes. Okay, so with simpler laws in place, what's the next step? Well, it's all about incentivizing growth. Let's look at the massive government-backed push that's happening to create millions of new jobs. And this right here is the fuel for that push. We're talking nearly 1 lakh crore rupees. That's about 12 billion US dollars. This is the financial muscle behind a new scheme, the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, or PMVBRY, and it's designed to directly reward employers for creating new jobs. And all that investment has a very specific goal. The PMVBRK scheme is aiming to create over 3.5 crore, that's 35 million new jobs in just 2 years. So this isn't some vague stimulus plan, it's a direct financial injection aimed squarely at boosting formal employment. So we've got simpler laws and major incentives for new jobs. But what about the workers themselves? How do they actually access their benefits in this new system? Well, the answer is a digital-first approach that is completely changing the game for Social Security. Let's take the Employees Provident Fund, or EPF. That's India's main retirement savings program. It used to be a real headache to get your own money out. You had to navigate 13 different complex rules. Now, look at this. It's a simple 3-step online process. You just self-declare your need, you can access a huge chunk of your savings, and for many people, the payment is settled automatically. It's that simple. And the tech is getting even cooler. Workers can now use face authentication right on their phones through the government's all-in-one Umang app. This lets them instantly get and activate their Universal Account Number, or UAN, which is basically the key that unlocks all their Social Security benefits. No paperwork, no waiting in lines. Just a quick scan of your face. Okay, the next piece of this puzzle is all about inclusion. The whole goal is to dramatically expand the Social Security safety net, to bring millions of workers who were previously in the informal economy into the formal system, many for the very first time. And the results? They're absolutely staggering. Check this out. In 2015, less than 20% of India's population had any kind of social protection. Just a decade later, that has more than tripled to over 64%. This incredible leap has actually propelled India to have the second highest ranking in the entire world for social protection coverage.
So you're probably wondering, how is that even possible? Well, a key tool is the eShram portal. Think of it as a national database for workers in the unorganized sector. By late 2025, over 310 million of these workers have registered. This gives the government a direct way to identify them and deliver the benefits they're entitled to. So who exactly is being brought into the fold? Well, for the very first time, the new Social Security Code specifically recognizes and creates rules for gig and platform workers. You know, your delivery drivers and app-based workers. It also strengthens protections for migrant workers, people on fixed-term contracts, and millions of others in that huge unorganized sector. Okay, so we've got new laws, we've got job incentives, and a much wider safety net. The final piece of the puzzle is connection, linking the right people with the right jobs. And to do that, a new digital public infrastructure is being built to bridge that exact gap. This number gives you a sense of the sheer scale of what we're talking about. In 2025 alone, the National Career Service Portal, or NCS, brought together over 4 crore, that's 40 million job vacancies. It's creating a massive, centralized digital hub for employment. And what's really crucial here is that the government isn't trying to do this all alone. The NCS is building a digital ecosystem by partnering with huge players in tech and the gig economy. This means jobs from companies like Microsoft, Zomato, and Swiggy are integrated right into the platform, creating one powerful gateway to all kinds of opportunities. In this quote right here, it gets to the heart of the whole strategy. The goal for the NCS isn't just to be another job website. The vision is to make it a digital public infrastructure, or DPI. The best way to think about it is like a digital highway for employment. It's a foundational, open platform that the entire skills and jobs ecosystem can then build on top of. So there you have it. You put it all together, a new legal foundation, a digital-first approach to benefits, and a much, much wider safety net. This is a ground-up redesign of India's entire employment landscape. The ambition is massive, but the real question is the one right here. How will all of these changes truly shape the future of work for the hundreds of millions of people who power the Indian economy? साल 2025 भारत के लेबर और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए एक लैंडमार्क साल था। दशकों पुराने नियमों को पूरी तरह से बदल दिया गया। तो आखिर ये बदलाव हैं क्या और इनसे देश के करोड़ों कर्मचारियों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? आइए इसी को समझते हैं। जरा सोचिए, दशकों तक भारत का जो लेबर लैंडस्केप था उसे एक या दो नहीं बल्कि पूरे 29 अलग-अलग कानून चला रहे थे। मतलब ये एक ऐसा मकड़ जाल था जिसमें बिजनेस करने वाले और काम करने वाले दोनों ही बस उलझ कर रह जाते थे। और फिर आया साल 2025 और एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव हुआ कि इन सभी कानूनों को समेटकर सिर्फ 4 कोड्स में बदल दिया गया। ये हमारे देश के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े रिफॉर्म्स में से एक था और इसका मकसद सिर्फ एक था, नियमों को आसान बनाना, उन्हें आज के जमाने के हिसाब से मॉडर्न बनाना। तो इस पूरे बदलाव की तस्वीर कैसी दिखती है, इसे हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले लेबर के लिए जो नई रूल बुक लिखी गई है उसे समझेंगे। फिर नौकरियां और सोशल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए क्या किया गया वो जानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल वर्कर रेवोल्यूशन की और आखिर में इन सब का भारत के लिए मतलब क्या है। तो इस पूरे बदलाव की जो नींव है वो है 4 नए लेबर कोड्स जो 21 नवंबर 2025 से लागू हो गए। अब इन सभी बदलावों के पीछे की सोच क्या है? देखिए, सोच बड़ी सीधी है। कंप्लायंस को आसान करना, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और जो छोटे मोटे अपराध हैं उनके लिए जेल की जगह जुर्माना लगाना। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी अधिकार, वेतन का अधिकार। जो पहला कोड है वो हर वर्कर को, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज्ड, मिनिमम वेज की कानूनी गारंटी देता है। और तो और एक नेशनल फ्लोर वेज भी तय करता है जिससे नीचे कोई भी राज्य नहीं जा सकता। अच्छा, वेतन की बात तो हो गई, लेकिन नौकरी की शर्तों का क्या? यहीं पर दूसरा कोड काम आता है।
ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को परमानेंट कर्मचारियों के बराबर अधिकार देता है और अगर किसी को नौकरी से निकाला जाता है तो उनके लिए एक रीस्किलिंग फंड भी बनाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि आज के इकोनॉमी में सिर्फ परमानेंट कर्मचारी तो है नहीं, और यहीं पे तीसरा कोड एक असली गेम चेंजर बनकर सामने आता है। ये पहली बार, मतलब इतिहास में पहली बार, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, काम करने की जगह सुरक्षित भी तो होनी चाहिए, है ना? तो जो चौथा कोड है वो इसी पर फोकस करता है। ये नेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अनिवार्य बनाता है और जो माइग्रेंट लेबर हैं उन्हें ट्रैवल अलाउंस जैसी नई सुरक्षा देता है। लेकिन देखिए, सिर्फ कानून बदलना ही काफी नहीं होता। 2025 में नई नौकरियां बनाने और सोशल प्रोटेक्शन को बढ़ाने पर भी उतना ही जोर दिया गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना या PMVBRY। इसे खास तौर पर हर सेक्टर में जॉब क्रिएशन को एक जबरदस्त पुश देने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस योजना के लिए सरकार ने, आप अंदाजा लगाइए, करीब 1 लाख करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा बजट रखा है। और लक्ष्य भी उतना ही बड़ा है, सिर्फ 2 साल के अंदर 3.5 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां बनाना। और इसमें जो स्पेशल फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है। और इसका असर वो सोशल सिक्योरिटी पर साफ साफ दिखाई देता है। आप देखिए, सिर्फ 1 दशक में कवरेज 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया और इस मामले में भारत आज दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। तो एक तरफ तो ये कानून बदले जा रहे थे और दूसरी तरफ एक डिजिटल क्रांति भी चल रही थी। इसका मकसद था वर्कर्स के लिए सर्विसेज को तेज, आसान और एकदम पारदर्शी बनाना। जैसे कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम EPFO कहते हैं, वो तो पूरी तरह बदल ही गया। अब वो पुराने धीमे कागजी तरीकों की जगह तेज डिजिटल तरीकों ने ले ली है। और फिर है ई-श्रम पोर्टल। ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का नेशनल डेटाबेस है, इस पर रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 31 करोड़ को पार कर गया। ये एक चौंकाने वाला नंबर है और इसकी वजह से अब वेलफेयर स्कीम्स को सही लोगों तक पहुंचाना मुमकिन हो पाया है। जो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है वो तो अब जॉब्स का एक बड़ा डिजिटल हब, एक अड्डा बन गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट, जोमैटो, स्विगी, उबर जैसी बड़ी बड़ी टेक और गिग इकोनॉमी कंपनियों के साथ जुड़ गया है ताकि नौकरी ढूंढने वालों को लाखों मौके एक ही जगह पर मिल सके। तो इन सब बातों का क्या मतलब है? इस पूरे बड़े बदलाव से हमें क्या समझना चाहिए? तो देखिए, 2025 के इन सुधारों का निचोड़ अगर निकालना हो तो वो यही है: कानूनों को आसान बनाना, सोशल सेफ्टी नेट को बढ़ाना ताकि गिग वर्कर्स जैसे लोग भी इसमें आ सकें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वर्कर्स को सीधा फायदा पहुंचाना और पूरी वर्कफोर्स को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देना, मतलब रोजगार, वेतन और सुरक्षा के लिए साफ सुथरे नियम बनाना। तो ये सुधार एक नई नींव तो जरूर रखते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये महान लेबर रिफॉर्म्स एक उभरते हुए भारत के लिए वाकई में एक फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स तैयार कर पाएंगे? आने वाले सालों में भारत की इकोनॉमी और करोड़ों वर्कर्स पर इसका क्या असर पड़ता है, यही देखने वाली सबसे बड़ी कहानी होगी। आज की इस विस्तृत चर्चा में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास जो विषय है वो सीधे तौर पर हर उस इंसान से जुड़ा है जो किसी दफ्तर में जाता है। बिल्कुल, और जो अपना खुद का व्यवसाय चलाता है या फिर जो भविष्य में करियर बनाने की तैयारी कर रहा है। हाँ, सही कहा आपने। आज हम भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की 2025 की ईयर एंड रिव्यू रिपोर्ट यानी साल के अंत की समीक्षा रिपोर्ट का एक गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं। और ये चर्चा पूरी तरह से सरकारी रिपोर्ट, डेटा और आधिकारिक घोषणाओं पर आधारित है। एग्जैक्टली। और सुनने वालों को मैं बता दूं कि ये कोई नीरस डेटा या बोरिंग सरकारी आंकड़े नहीं है। ये इस बात का सीधा खाका है कि भारत में नौकरियां, वेतन, काम के घंटे और भविष्य की सुरक्षा का जो पूरा ढांचा है वो कैसे बदल रहा है। और ये देखना वाकई रोमांचक है कि 2025 का साल भारत के वर्कफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक साल कैसे बन गया। मैं भी यही सोच रही थी। मेरे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो इस पूरे परिदृश्य को बारीकी से समझने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि भारत का सोशल प्रोटेक्शन कवरेज यानी सामाजिक सुरक्षा का जो दायरा है वो 2015 के 19% से उछलकर 2025 में 64.3% हो गया है। 64.3%? ये तो एक बहुत बड़ा उछाल है। बिल्कुल। इसे अगर आसान शब्दों में समझें तो 10 साल पहले देश के सिर्फ 19% कामगारों के पास बुढ़ापे या बीमारी के लिए कोई ठोस सुरक्षा थी। आज ये आंकड़ा आधे से बहुत ज्यादा हो चुका है। ये कोई मामूली वृद्धि नहीं है। एकदम सही।
इस विशाल उछाल के साथ भारत अब अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मामले में चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। ये एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव है जो साफ साफ बताता है कि देश का श्रम बाजार किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 21 नवंबर 2025 से 21 पुराने श्रम कानूनों को हटाकर 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए गए हैं। इतने सारे पुराने और कई बार आपस में टकराने वाले कानूनों को सिर्फ 4 संहिताओं में समेट देना एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, और ये सिर्फ कागजों का फेरबदल नहीं है। अगर हम इसके पीछे के असल मकसद की बात करें तो ये इंस्पेक्टर राज को जड़ से खत्म करने की एक कोशिश है। इंस्पेक्टर राज मतलब पुराने सिस्टम में जहां इंस्पेक्टर का काम मुख्य रूप से गलतियां निकालना, डराना और दंड देना होता था। एग्जैक्टली। लेकिन अब इन नए कोड्स के तहत इंस्पेक्टर सिर्फ एक जांचकर्ता नहीं रह गया है, वो अब एक सुविधा प्रदाता या फैसिलिटेटर की भूमिका में आ गया है। इसका सीधा मतलब है कि वो कंपनियों और कर्मचारियों को नियमों का पालन करने में मदद करेगा। हाँ, और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पहली बार होने वाले अपराधों को क्रिमिनल श्रेणी से हटाकर सिविल पेनल्टी यानी आर्थिक जुर्माने में बदल दिया गया है। मतलब पहले जो एक छोटी सी कागजी गलती पर सीधे जेल जाने का डर होता था, बिल्कुल उसी डर ने पूरे सिस्टम को धीमा कर दिया था। अब अनुपालन की प्रक्रिया सरल हो गई है। सिंगल लाइसेंस, सिंगल रजिस्ट्रेशन और सिंगल रिटर्न सिस्टम आ गया है। ये तो वाकई प्रक्रियाओं को आसान बनाने वाला कदम है। अब अगर हम मजदूरी की बात करें तो इन 4 कोड्स में से पहला है वेज कोड यानी वेतन संहिता। मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि अब न्यूनतम वेतन हर कर्मचारी का कानूनी अधिकार बन गया है। हाँ, चाहे वो असंगठित क्षेत्र का दिहाड़ी मजदूर हो या किसी बड़ी कंपनी का कर्मचारी। और उसमें एक फ्लोर वेज का भी जिक्र है। फ्लोर वेज यानी केंद्र सरकार एक न्यूनतम आधार तय कर देगी। सही कहा। अगर मान लीजिए वो आधार 400 रुपए है तो कोई भी राज्य सरकार उस फ्लोर वेज से कम न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकती। इसके अलावा ओवरटाइम के नियमों को भी पहली बार बहुत सख्ती से लागू किया गया है ना? बिल्कुल। अगर कोई भी कर्मचारी अपने तय काम के घंटों से ज्यादा काम करता है तो कंपनी को उसे सामान्य वेतन दर का कम से कम 2 गुना ओवरटाइम देना ही होगा। और वेतन सीमा चाहे जो भी हो, समय पर वेतन देने के नियम अब सब पर लागू होते हैं। वेतन तो तय हो गया, लेकिन काम की परिस्थितियों और नौकरी जाने के डर का क्या? यहीं से इंडस्ट्रियल रिलेशंस की तस्वीर सामने आती है, जो हमारा दूसरा कोड है। हाँ, इस कोड में कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रावधान है। मुझे इसमें फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी FTE वालों के लिए किए गए प्रावधान सबसे अच्छे लगे। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं उन्हें हमेशा डर रहता था कि उनके पास परमानेंट कर्मचारियों जैसी सुरक्षा नहीं है। बिल्कुल। और अब फिक्स टर्म कर्मचारियों को भी परमानेंट कर्मचारियों जैसी ही सारी सुविधाएं मिलेंगी। इस कदम से जो अत्यधिक ठेकेदारी प्रथा थी, जहां कर्मचारियों का शोषण होता था, उसे कम करने में बहुत मदद मिलेगी। और एक रीस्किलिंग फंड भी तो बना है ना? हाँ, ये एक शानदार चीज जुड़ी गई है। अगर कोई कंपनी किसी वजह से अपने कर्मचारी को नौकरी से निकालती है तो छटनी के मुआवजे के अलावा उस कंपनी को 15 दिन का वेतन इस विशेष फंड में देना होगा, ताकि वो पैसा उस निकाले गए कर्मचारी की दोबारा ट्रेनिंग के काम आ सके। बिल्कुल, ताकि वो बाजार में नई नौकरी के लिए तैयार हो सके। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम को भी आपसी सहमति के आधार पर कानूनी मान्यता दे दी गई है। महामारी के बाद ये आज के समय की सबसे बड़ी मांग थी। अब तीसरे कोड की तरफ बढ़ते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी सीधे तौर पर बदल रहा है। सोशल सिक्योरिटी कोड। हाँ, सामाजिक सुरक्षा संहिता। इसमें पहली बार गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और एग्रीगेटर्स को साफ तौर पर परिभाषित किया गया है। और सुनने वालों की जानकारी के लिए बता दूं कि एग्रीगेटर वो टेक कंपनियां होती हैं जो एक ऐप के जरिए ग्राहकों को सीधे सेवा देने वालों से जोड़ती हैं, जैसे हम कैब बुक करते हैं या खाना मंगवाते हैं। सही बताया आपने। लेकिन इसमें जो एक प्रावधान मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा वो है कम्यूट यानी काम पर आने जाने के दौरान होने वाले हादसों को लेकर। ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण बदलाव है। सोच कर देखिए, एक इंसान जो सुबह उठकर अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकलता है, अगर रास्ते में उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो पुराने नियमों के तहत उसे कोई कवर नहीं मिलता था, क्योंकि वो आधिकारिक तौर पर ऑफिस में नहीं था। लेकिन अब काम पर आते जाते समय होने वाले एक्सीडेंट को भी रोजगार से जुड़ा हुआ माना जाएगा और इसके लिए कर्मचारी को बाकायदा मुआवजा मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। बिल्कुल है। इसके अलावा इसी कोड में फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पाने की जो पुरानी 5 साल की सीमा थी, उसे घटाकर सिर्फ 1 साल की निरंतर सेवा कर दिया गया है। ये सब तो ठीक है, लेकिन काम के दौरान सुरक्षा का क्या? ये सवाल हमें चौथे कोड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड की ओर ले जाता है। हाँ, इसमें कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हैं। उदाहरण के तौर पर महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है, लेकिन ये पूरी तरह से उनकी सहमति और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की शर्त पर है। और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ काम की जगह पर किसी भी तरह के भेदभाव पर भी सख्त रोक लगाई गई है। बिल्कुल। और जो प्रवासी मजदूर हैं, जो अपने घर से दूर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उनके लिए साल में एक बार अपने घर जाने के लिए ट्रैवल अलाउंस यानी यात्रा भत्ते का कानूनी प्रावधान किया गया है।
और ये नियम सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है, ये उन सभी संस्थानों पर लागू होगा जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं। यहाँ तक कि अगर कोई एक अकेला व्यक्ति भी किसी खतरनाक काम में लगा है तो ये सुरक्षा कोड उस पर भी लागू होगा। इसके तहत कर्मचारियों के लिए मुफ्त सालाना स्वास्थ्य जांच और नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर। जब हर कर्मचारी के पास एक लिखित अपॉइंटमेंट लेटर होगा तो असंगठित क्षेत्र अपने आप एक औपचारिक रूप लेने लगेगा। बिल्कुल सही कहा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम 99,446 करोड़ रुपए के एक भारी भरकम पैकेज की बात करने वाले हैं। ये है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। 99,000 करोड़ से ज्यादा की रकम किसी भी विकासशील देश के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। यह पैसा सीधे तौर पर नौकरियां पैदा करने के लिए बाजार में उतारा जा रहा है। इस योजना का सीधा लक्ष्य 2 साल के भीतर देश में 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके 2 मुख्य हिस्से हैं। हाँ, पहला हिस्सा उन युवाओं के लिए है जो पहली बार फॉर्मल सेक्टर में नौकरी शुरू कर रहे हैं। ऐसे लगभग 1.92 करोड़ लोग होंगे। सरकार का कहना है कि ऐसे पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को उनके पहले महीने की सैलरी, जो कि 15,000 रुपए तक हो सकती है, सरकार खुद देगी। ये पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए एक सीधा नकद प्रोत्साहन है। लेकिन क्या ये पैसा कंपनी के खाते में जाएगा या सीधे कर्मचारी की जेब में? ये पैसा EPFO के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में सीधे कर्मचारी के खाते में जाएगा। और दूसरी तरफ नियोक्ताओं को भी तो प्रोत्साहन चाहिए। हाँ, कंपनियों को भी अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए 2 साल तक उनके EPFO योगदान में सरकार की तरफ से छूट दी जाएगी। बिल्कुल, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो ये लाभ अगले 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अब इसी पैसे और नौकरियों के सिलसिले में बात करते हैं EPFO की। पहले तो PF निकालना मतलब किसी बुरे सपने जैसा था। हाँ, वो एक तरह का ब्यूरोक्रेटिक रूट कैनाल था, बिना सुन किए दांत उखड़वाने जैसा दर्दनाक अनुभव। फॉर्म भरो, पुराने बॉस के पीछे पीछे दस्तखत के लिए भागो। बिल्कुल, और हफ्तों इंतजार करो। लेकिन इस रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि EPFO ने पूरी तरह से एक डिजिटल अवतार ले लिया है। हाँ, उन्होंने अपनी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब 5 लाख रुपए तक का ऑटो सेटलमेंट हो जाएगा। इसके लिए अब कोई अनिवार्य चेक या बैंक की पासबुक अपलोड करने की लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। और मैंने ये भी पढ़ा कि उमंग ऐप पर अब फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरे की पहचान की तकनीक से UAN एक्टिवेट किया जा सकता है। मतलब फोन के कैमरे के सामने चेहरा लाइए और काम खत्म। इसके अलावा आंशिक निकासी यानी बीच में पैसे निकालने के नियमों को भी बहुत तर्क संगत कर दिया गया है। पहले 13 अलग अलग जटिल नियम हुआ करते थे, जिन्हें अब केवल 3 सरल श्रेणियों में बांट दिया गया है। शिक्षा के लिए अब 10 बार और शादी के लिए 5 बार पैसे निकाले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब कोई भी कर्मचारी केवल 12 महीने की सर्विस के बाद ही अपने PF बैलेंस का 75% तक निकाल सकता है, जिसमें कंपनी और कर्मचारी दोनों का योगदान शामिल होगा। पेंशनर्स के लिए भी एक बहुत ही क्रांतिकारी खबर है, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। हाँ, CPPS जनवरी 2025 से लागू। इस सिस्टम ने पेंशनर्स की एक बहुत बड़ी परेशानी खत्म कर दी है। पहले पेंशनर्स को उसी बैंक की शाखा में जाना पड़ता था जहां से उनकी पेंशन शुरू हुई थी। अब वे भारत के किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन ले सकते हैं। अब उन्हें किसी एक जगह या एक बैंक शाखा से बंधे रहने की जरूरत नहीं है। अब असंगठित क्षेत्र की तरफ रुख करते हैं। ई-श्रम पोर्टल का जो डेटा इस रिपोर्ट में दिया गया है वो सच में हैरान करने वाला है। 31.42 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इतने लोग अब सरकार के डिजिटल रडार पर आ चुके हैं। और ये पोर्टल अब भाषिणी प्रोजेक्ट की मदद से 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि भाषा कभी भी किसी मजदूर के लिए बाधा ना बने। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ई-श्रम अब सिर्फ एक डेटाबेस या एक्सेल शीट भर नहीं रह गया है। यह अब एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। बिल्कुल। सबसे अहम बात यह है कि जोमैटो, उबर, स्विगी, अमेजॉन, ओला जैसे 12 से अधिक बड़े एग्रीगेटर्स अब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं। इसका मतलब है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर जो लाखों गिग वर्कर्स दिन रात डिलीवरी कर रहे हैं या कैब चला रहे हैं, वो अब किसी न किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ गए हैं। और इसी का सबसे बड़ा नतीजा ये है कि अब इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। सोचिए, एक डिलीवरी बॉय जो बारिश में खाना पहुंचा रहा है, पहले अगर उसके साथ हादसा होता था तो अस्पताल का खर्च उसे कर्ज में डुबो देता था। और अब उसके पास 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर होगा। ये गिग इकोनॉमी के लिए एक जीवन रक्षक कदम है। स्वास्थ्य सुरक्षा की बात उठी है तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC का जिक्र भी जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक ESIC का कवरेज अब देश का 713 जिलों तक पहुंच गया है और अस्पतालों में बेड्स की संख्या 3 गुना बढ़कर 87,715 हो गई है। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में ये एक बड़ा उछाल है। 10 नए ESIC मेडिकल कॉलेज भी चालू हो गए हैं। इसके अलावा कंपनियों को राहत देने के लिए स्प्रीबी 2025 और एमनेस्टी 2025 जैसी स्कीम लाई गई हैं।
स्प्री 2025 उन कंपनियों के लिए है जो किसी कारण से ईएसआई कवरेज से बाहर रह गई थी। वे अब बिना किसी पुरानी पेनाल्टी के डर के रजिस्टर कर सकती हैं। और ये एमनेस्टी 2025 स्कीम क्या है? एमनेस्टी 2025 के जरिए पुराने कानूनी विवादों को कोर्ट के बाहर निपटाने का मौका दिया जा रहा है। अच्छा। पहले अगर कोई कंपनी पीएफ या ईएसआई का पैसा जमा करने में देरी करती थी तो उस पर हर साल 25% का भारी भरकम डैमेज या जुर्माना लगता था। ओहो, 25%। हाँ, और अब उस फ्रेमवर्क को आसान करके सिर्फ 1% प्रति माह कर दिया गया है। नौकरियां खोजने की तरीके भी तो तेजी से बदल रहे हैं। नेशनल करियर सर्विस यानी एनसीएस पोर्टल का डेटा बताता है कि 2025 में 4 करोड़ से ज्यादा रोजगार के अवसर जुटाए गए। एनसीएस अब सिर्फ एक सरकारी जॉब पोर्टल नहीं रहा, बल्कि ये रोजगार के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के साथ समझौते किए गए हैं ताकि युवाओं को एआई आधारित स्किल्स दिए जा सकें। इसका मतलब भारत सिर्फ घरेलू नौकरियां ही नहीं देख रहा है, बल्कि विश्व स्तर पर तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, भारत इंटरनेशनल लेबर मोबिलिटी पर बहुत गंभीरता से काम कर रहा है ताकि भारतीय कामगार सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से विदेशों में जाकर काम कर सकें। इस रिपोर्ट में कुछ छोटे लेकिन बहुत ही अहम तकनीकी तथ्य भी छिपे हैं, जैसे कि खदानों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक डिटोनेटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ, देखने में ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा फर्क है। वही मैं पूछने वाली थी कि इनमें फर्क क्या है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल बदलाव है। इलेक्ट्रिक डिटोनेटर अक्सर खदानों में मौजूद स्टैटिक करंट या किसी आवारा रेडियो वेव से गलती से फट सकते थे, जिससे मजदूरों की जान चली जाती थी। और इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर में एक कोडेड सिग्नल होता है। वो तभी फटता है जब उसे वो खास कोड मिलता है। ये खदानों में काम करने वाले मजदूरों की जान बचाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। एक और आंकड़ा है जिसपे चर्चा जरूरी है। लेबर ब्यूरो ने कृषि और ग्रामीण मजदूरों के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी महंगाई नापने के सूचकांक का बेस ईयर बदल दिया है। हाँ, इसे 1986-87 से बदलकर 2019 कर दिया गया है। इतने सालों बाद इस बेस ईयर को बदलने से असल में क्या फर्क पड़ेगा? इस बदलाव के बिना हम महंगाई का सही अंदाजा लगा ही नहीं सकते थे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 1986 में एक ग्रामीण मजदूर की बास्केट में शायद मिट्टी का तेल और बेसिक अनाज ज्यादा था, और आज 2019 के हिसाब से उस मजदूर के खर्च में मोबाइल डेटा, बिजली और बच्चों की शिक्षा का खर्च शामिल हो गया है। एग्जैक्टली। अगर हम आज भी मिट्टी के तेल के दाम पर महंगाई नापेंगे तो नीतियां गलत बनेंगी। 2019 बेस ईयर करने से अब सरकार को यह पता चलेगा कि ग्रामीण मजदूरों को वास्तव में किस तरह की महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो 2025 का साल भारत के वर्कफोर्स के लिए कागजी फाइलों की धूल से निकलकर एक पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित व्यवस्था में आने का साल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे वो गिग वर्कर्स को हेल्थ केयर देना हो, ईपीएफओ को चेहरे की पहचान से जोड़ना हो, या फिर 4 नए लेबर कोड्स लागू करना हो। शायद यही वजह है कि भारत को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी के लिए प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड 2025 भी मिला है। ये जानकारी सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये समझना है कि दशकों पुराने कानून जो अब काम नहीं कर रहे थे, उन्हें कैसे हटाकर एक नया सिस्टम बनाया गया है। एक ऐसा सिस्टम जो नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को एक समान धरातल पर ला रहा है, जहां विवाद कम हो, सुरक्षा ज्यादा हो और कामकाज का तरीका आज के डिजिटल युग के बिल्कुल अनुकूल हो। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जिस तेजी से आज गिग वर्कर्स को, जो कभी पूरी तरह से असंगठित माने जाते थे, परमानेंट कर्मचारियों जैसी सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, और जिस तरह से एआई और टेक्नोलॉजी पूरी भर्ती और काम के सिस्टम को ऑटोमेट कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले एक दशक में पारंपरिक 9 से 5 की फुल टाइम नौकरी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या हम सब किसी न किसी रूप में ज्यादा सुरक्षित लेकिन लचीली गिग इकोनॉमी का ही हिस्सा बन जाएंगे? ये सच में गहराई से सोचने वाला विषय है। क्या लचीलापन और सुरक्षा एक साथ लंबे समय तक चल पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। आज के इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन जटिल सरकारी आंकड़ों को इतने सरल और दिलचस्प तरीके से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को सुनने वाले सभी लोग जरा सोच कर देखें कि वे इस बदलते परिदृश्य में खुद को कहां देखते हैं, क्योंकि भविष्य की इकोनॉमी अब दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। आज के लिए बस इतना ही।